আপনারা দেখছেন বাংলার মুখ নিউজ। বাংলার মুখ নিউজে আপনাকে স্বাগত জানাই। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। আপনার একটি লাইক, একটি শেয়ার আমাদের নিত্য নতুন খবর পরিবেশন করতে উৎসাহ প্রদান করে। তাই মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। নিত্য নতুন খবর পেতে আমাদের ছোট্ট এই ইউটিউব চ্যানেলে নজর রাখুন, সঙ্গে থাকুন। আমাদের দর্শকদের জন্য আগামীতে খুব শীঘ্রই আমরা নিয়ে আসতে চলেছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লাইভ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের নোটিফিকেশন পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, তাহলে আমাদের নোটিফিকেশন আপনার ফোনে সবার আগে চলে যাবে। পরিবর্তন সংকল্প সভায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় ভাষণ দিতে এসে বর্তমান তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করলেন। কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃণমূলের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে টিএমসি সরকার দুর্নীতির সরকার, অনুপ্রবেশকারীদের ও অপরাধীদের সাহায্য করার সরকার। এরা মাটি মানুষের শত্রু। এই সরকার নারীদের সুরক্ষা দিতে পারে না, কিন্তু অপরাধীদের সাহায্য করে। এই সরকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান করতে পারে না, তাই এই রাজ্যের যুবসমাজ নিজের রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। যোগ্য যুবক যুবতীদের চাকরি চুরি করে মোটা টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। এই সরকারের নেতাকর্মীদের বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার হচ্ছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা প্রকল্পগুলো এই রাজ্যের মানুষজনেদের না দিয়ে নিজেরাই লুট করে খেয়ে ফেলছে। সরকারের জনমুখী প্রকল্পের বেশ কিছু প্রকল্প এই রাজ্যে শুরু হতেই দিচ্ছে না। এমনকি কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো নিজেদের নামে মানুষের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে। গরিব মানুষদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। তাই আগামী দিনে এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের সরকারকে আপনাদের জবাব দিতে হবে। আগামী দিনে আপনারা এই সরকারকে বিদায় দিয়ে বিজেপির সরকার আনুন, যে সরকার মানুষের সমস্ত দিক খেয়াল রাখবে ও অপরাধীদের বিচার করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলার মানুষজনেদের উদ্দেশ্য বলেন যে এই রাজ্যে একসময় ভারতের অগ্রগতিতে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। সারা দেশের অনুপ্রেরণা ছিল এই পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু এখন সেই গরিমা লুপ্তপ্রায়। তাই আগামী নির্বাচনে আপনারা এই ভ্রষ্টাচারী সমস্ত মানুষ জাতির শত্রু সরকারকে বিদায় দিয়ে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা করে রাজ্যের পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনার শপথ নিন এবং জঙ্গলরাজ থেকে মুক্ত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করুন। আগামী দিনে এই রাজ্যের উন্নয়নে বিজেপি সরকার যৌথভাবে কাজ করে যাবে, এটা আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি। আগামী দিনে এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের কোন অপরাধীকে আমাদের সরকার ছাড় দেবে না। সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের সরকার বাংলার মাটি মানুষের জন্য কাজ করবে ও সোনার বাংলা গড়বে। এখন সময় এসেছে এই জঙ্গলরাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার। আজ পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় বাংলার মাটিতে মানুষের উপস্থিতি বলে দিয়েছে যে পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা। রাজনৈতিক দল যার একটাই মন্ত্র, রাষ্ট্র সর্বোপরি, রাষ্ট্র সর্বোপরি, নেশন ফার্স্ট, নেশন ফার্স্ট। বিজেপির দেবতুল্য কার্যকর্তাকে প্রণাম জানাই। আমরা শুনব বিশ্বের সর্বশক্তিমান নেতা, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির বক্তব্য। আমরা আজ বক্তব্য রাখব না। আমি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হিসেবে যে গুরুদায়িত্ব দল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন গত 5 বছর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। আমি মাননীয় মোদীজিকে আমার দণ্ডবত প্রণাম নিবেদন করি। প্রিয় সভাপতি রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য, ভারত সরকারের 2 রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর, 3 প্রাক্তন সভাপতি বরেণ্য তথাগত রায়, সম্মানীয় রাহুল সিনহা, সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ এবং সর্বোপরি মাননীয় মিঠুন চক্রবর্তী সহ সম্মানিত মঞ্চ। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথা আমরা শুনব। তিনি 3 দিন ধরে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সফর করছেন। 18,700 কোটি টাকার উন্নয়ন দিয়ে গেছেন। তাই আজকের এই সভা থেকে পরিবর্তনের সংকল্প নিতে হবে। সবাই বলুন, পরিবর্তন হচ্ছে। এবারে পরিবর্তন হচ্ছে। বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, মা বোনের সম্মান চাই, চাকরি চাই, শিল্প চাই,
অন্নদাতা কৃষককে বাঁচাতে চাই, অনুপ্রবেশ মুক্ত বাংলা চাই, চোর মুক্ত বাংলা চাই, জিহাদি মুক্ত বাংলা চাই, মৌলবাদী মুক্ত বাংলা চাই, জঙ্গি মুক্ত বাংলা চাই। তাই প্রধানমন্ত্রীজি দমদমের মিটিংয়ে বলে গেছেন, সাংস্কৃতিক রাজধানী দেশের পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা, শিল্প সবকিছুতে 1 নম্বরে ছিল। তিনি বলেছেন বাংলার হিত গৌরব ফেরাবে বিজেপি, গ্যারেন্টারের নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। আমরা মোদীজির নেতৃত্বে ডবল ইঞ্জিন করব, রাষ্ট্রবাদী সরকার করব এবং আদর্শ বাঙালি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করব। তাই বলুন, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, আরো জোরে পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। আপনার একটি লাইক, একটি শেয়ার আমাদের নিত্য নতুন খবর পরিবেশন করতে উৎসাহ প্রদান করে। তাই মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। নিত্য নতুন খবর পেতে আমাদের ছোট্ট এই ইউটিউব চ্যানেলে নজর রাখুন, সঙ্গে থাকুন। প্রধানমন্ত্রী যিনি 120টি দেশকে কোভিড কালে সাহায্য করেছেন, 120 কোটি মানুষকে কোভিড কালে 2 বারের জন্য ভ্যাকসিন দিয়েছেন, যিনি 80 কোটি মানুষকে আজ পর্যন্ত বিনা পয়সায় রেশন দিচ্ছেন, যিনি স্বপ্ন দেখতে পারেন এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারেন, সেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। প্রিয় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, শ্রী সুকান্ত মজুমদার, শ্রী শান্তনু ঠাকুর, শ্রী রাহুল সিনহা, শ্রী দিলীপ ঘোষ, শ্রদ্ধেয় শ্রী তথাগত রায়, মঞ্চে উপস্থিত আমার সমস্ত সহকর্মী বন্ধুগণ, শ্রদ্ধেয় মিঠুনদা এবং কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত, পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত যাদের স্বতঃস্ফূর্ত পদধ্বনি আজকে কলকাতার এই মাটিতে পড়েছে পরিবর্তনের স্বার্থে, সেই কর্মীদের আমি আমার প্রণাম জানাই। দেখুন, এই মাটি আমাদের মসৃণ হয়নি। 2016 সাল থেকে প্রায় 300 জনের বেশি বিজেপি কর্মীর রক্তের ওপর দিয়ে চলে আজকে আমরা এই ব্রিগেডে পৌঁছেছি। আমরা এসেছি শুধুমাত্র একটাই লক্ষ্যে, 2026-এর নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন। আর আজকে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসিট ডাক দিয়েছে মুর্শিদাবাদ চলো, মুর্শিদাবাদ। কি আছে ওখানে? ওখানে হুমায়ুন আছে, বাবুর আছে। চলো দিলদার চলো, চাঁদ কি পার চলো। কতদিন চলবে এই রাজনীতি? আরে পশ্চিমবঙ্গ কোনো ধর্মশালা নয়, কোনো কোঠা নয়। আমরা এদেশের মানুষকে এদেশে রাখবো, ভোটার লিস্টে রাখবো, কিন্তু এমন ভোটার লিস্ট কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল রাজ্যের রানী সেজে আমার বঙ্গভূমি। আরে ও নদী, আর 2 মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে, ঠাকুর জামাই এলো বাপের বাড়িতে। ও শুধু ননদীরা আসছে না, ননদীরাও আসছে ঠাকুর জামাইয়ের সঙ্গে। পুরো পশ্চিমবঙ্গের সীমাবর্তী জেলার জনসন্তুলনকে বদলে দিয়েছে। শুধু বাংলা বদলায়নি, বদলে গেছে বনাঞ্চল, বদলে গেছে সীমাঞ্চল। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এখানে সংবিধান আক্রান্ত, রাজ্যপাল আক্রান্ত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আক্রান্ত, বিরোধী দলনেতা আক্রান্ত। এরা রাষ্ট্রপতিকেও বাদ দেয়নি, রাষ্ট্রপতির চেহারা নিয়ে পর্যন্ত অন্য কথা বলছেন। আর আজকে জঙ্গলমহলের মানুষ তারাও বলে দিয়েছে দিদির দিকে তাকিয়ে, হিতায় তোকে মানাইছি না রে। নিত্য নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের এই ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলে।
ভালো লাগলে পৃথিবীর কোনো সাবস্ক্রাইব করবেন, শক্তি লাইক তৃণমূল করবেন ও কংগ্রেসকে শেয়ার আটকে করতে রাখতে পারবে ভুলবেন না। না। আপনার এলাকার তৃণমূলের সমস্যা বিদায় সমাধানমূলক খবর নিশ্চিত। জানাতে আমাদের তৃণমূল হোয়াটসঅ্যাপ করুন। শেষ। আপনাদের সমস্যা সমাধানের তৃণমূল জন্য খবর পশ্চিমবঙ্গের আকারে ক্ষমতায় জনগণ ও ফিরছে প্রশাসনের না। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের যতই করো পৌঁছে দেওয়ার জন্য হামলা, খবর আকারে প্রকাশ করব আমরা। বিজেপি জিতবে তাই আমাদের সাথে বাংলা। থাকুন। মোবাইল এর নম্বর বাইরে কোনো কথা আপনাদের সামনে থাকবে না। 9775966222। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি ফিরে যান। মনে রাখবেন, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং গোটা পৃথিবী যার দিকে তাকিয়ে আছেন সেই নরেন্দ্র মোদী। পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত, সোমনাথ থেকে গৌহাটি, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, মানুষ যার উপরে ভরসা রাখেন সেই নরেন্দ্র মোদী আপনাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাই এক কথায় শেষ করছি, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর মোদীজির নেতৃত্বে তৈরি হবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। শ্যামাপ্রসাদের মাটিতে শ্যামাপ্রসাদের সরকার তৈরি হতে চলেছে। এটা কালের দেওয়াল লিখন, একে কেউ বদল করতে পারবেন না। বিজেপি জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। भारत माता की। ये बेटी कब से चित्र लेके खड़ी है, कोई कलेक्ट कर लीजिए ताकि वो बेटी आराम से बैठ सके। जरा एसपीजी के लोग ये कलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने। भारत माता की, भारत माता की। আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী ভাইও বোনেরা, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সুশ্রদ্ধ প্রণাম। बंगाल की ऐतिहासिक धरती, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। ये आपका उत्साह, ये आपका जोश, बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है, जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज, और वो आवाज हिंदुस्तान में एक क्रांति बन गई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का खात्मा हुआ। एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुट चुका है। নিত্য নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের এই ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है,
चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार, असली चोर कौन है ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है। आज 20 मशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जैम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए। लेकिन निर्मम सरकार साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोक माता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी, नवनिर्माण करेगी। बंगाल का विकास नेक नियत से होगा, सही नीतियों से होगा। बंगाल में अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी दिन रात बंगाल के विकास में लगी हुई है। आज भी अभी मैंने 18,000 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अभी 18,000 करोड़ कितना 18,000 करोड़ कितना 4 दिन पहले ही कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के लिए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। ये सभी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। इसका फायदा
यहाँ के सामान्य मानवी, किसान, व्यापारी और स्टूडेंट्स को मिलेगा। यहाँ की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। आप सब जानते हैं बंगाल के युवा प्रतिभा और हुनर में सबसे आगे है। बंगाल के युवा मेहनत करने में सबसे आगे है। बंगाल एक समय पर पूरे भारत के विकास को गति देता था। बंगाल व्यापार और उद्योगों में सबसे आगे था, लेकिन आज हालत क्या है? यहां का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास के काम ठप पड़े रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा बंगाल पीछे होता चला गया। उद्योग धंधे बंद होते चले गए। यहां टीएमसी सरकार में नौकरियां खुलेआम बेची जा रही है। भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। अब समय आ गया है। अब समय आ गया है। ये हालात बदले। बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। बंगाल के विकास का नेतृत्व करे। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। साथियों, टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है। ये टीएमसी वाले न खुद काम करेंगे न करने देंगे। जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को रोक कर रखती है। आप देखिए, हम कारीगरों और कामगारों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। हमारे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ऐसे हुनरमंद लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन निर्मम सरकार ने बंगाल में योजना पर ब्रेक लगा रखी है। मुझे बताइए भाइयों, मेरे इन विश्वकर्मा भाइयों को भारत सरकार के पैसे पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए? पहुंचने चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार पैसे दे रही है, बंगाल को कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी
ये विश्वकर्मा समाज के मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को उसे वंचित रखा जाता है। साथियों, देशवासियों को मुफ्त बिजली देने के लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए हर लाभार्थी को 75 से 80 हजार रुपया देती है। आपको, बंगाल के मेरे भाई बहनों को, हर परिवार को मोदी सरकार 75 से 80 हजार रुपया देती है। जो लाभार्थी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ता है, उसके घर का बिजली बिल 0 हो जाता है। लेकिन बंगाल सरकार इसे भी लागू नहीं होने दे रही। आप मुझे बताइए, आपका बिजली बिल 0 होना चाहिए कि नहीं? बिजली बिल 0 करने के लिए मोदी की मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जो इसे रोकते हैं वो आपके दुश्मन है कि नहीं है? बंगाल के दुश्मन है कि नहीं है? हर परिवार के दुश्मन है कि नहीं है? साथियों, बंगाल के विकास में चाय बागानों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी भूमिका है। लेकिन चाय बागानों के श्रमिकों को पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, चाय बागान के मेरे श्रमिकों को ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? केंद्र सरकार की इस योजना में बंगाल सरकार रोड़े अटका रही है। साथियों, आप सबने देश भर में पीएम आवास योजना की सफलता के बारे में सुना है। दुनिया के लोग भी जब सुनते हैं ना, अचरज करते हैं। जो लोग बंगाल से बाहर रह रहे हैं, लुटाता रहा ऐसे हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल रहा है। लेकिन यहां क्या हुआ? योजना का नाम बदल दिया गया, लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ की और जिन गरीबों को घर मिलना चाहिए था, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से बंगाल के गरीबों को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये टीएमसी सरकार मिलने देगी क्या? ये निर्मम सरकार मिलने देगी क्या? ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? गरीबों को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? साथियों, इतना ही नहीं, यही हाल जल जीवन मिशन का भी है। बंगाल में लोग पूछ रहे हैं, जब देश के बाकी हिस्सों में हर घर जल पहुंच सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं? भाइयों बहनों, केवल बिजली, पानी, सड़क और घर इसकी बात नहीं है। ये टीएमसी सरकार अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही है। देश के करोड़ों लोग इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। मुझे बताइए, गरीबों को
बीमारी में 5 लाख रुपए तक की मदद पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? मोदी दे रहा है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये टीएमसी सरकार बीमार लोगों की भी दुश्मन है कि नहीं है? अत्याचारी है कि नहीं है? लेकिन बंगाल के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना से भी, उस अधिकार से भी वंचित रखा गया है। आज बंगाल के किसान की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले ही चंद्रकोना में हमारे एक आलू किसान ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। पश्चिमी मिदनापुर से हुगली और बर्धमान तक किसानों से झूठे वायदे और सरकारी खरीद में घोटाला ही ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गया है। टीएमसी के कट, कमीशन और करप्शन के कारण गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये मोदी की गारंटी है। हर गरीब परिवार को बता देना, जैसे ही टीएमसी की सरकार जाएगी, गरीबों का पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। टीएमसी जाएगी तो हर घर साफ जल पहुंचेगा। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा। टीएमसी जाएगी तो कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। साथियों, हमारे बंगाल ने आजादी के बाद विभाजन सहा, विभाजन की आग देखी, मजहबी दंगे देखे, बाद के दशकों में अस्थिरता देखी, घुसपैठ का दौर देखा, रक्तपात सहा। इस सब की सबसे बड़ी भुक्तभोगी अगर कोई थी तो बंगाल की माताएं, बहनें, बेटियां, बंगाल की महिलाएं थी। लेप की सरकार में अपहरण, हत्या, बलात्कार का वो दौर कोई नहीं भूल सकता। इसलिए बंगाल के आप लोग लेप को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए। आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने लेप के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। अब याद करिए, कॉलेज परिसर में दुष्कर्म की घटना
नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले, टीएमसी कार्यालय में महिला से बलात्कार, 7-8 साल की बच्चियों से बलात्कार के खौफनाक कुकृत्य, कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। जहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, संदेश खाली की वो तस्वीरें और टीएमसी का रवैया, आरजीकर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी, बंगाल के लोग भूले नहीं हैं। टीएमसी कैसे खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती थी। साथियों, इसी मानसिकता का परिणाम है आज महिलाओं के खिलाफ एसिड अटैक जैसे घिनौने अपराध इतने ज्यादा मात्रा में पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। एक समय देश का सबसे प्रगतिशील राज्य होता था, आज वहां शाम होते ही माएं बेटियों को फोन करके कहती है, बाड़ी फिरे ऐशो सौंदे न माराइए। शक्ति की पूजा करने वाले बंगाल को ऐसे हालात मंजूर नहीं होंगे। मेरी माताओं बहनों को भरोसा दिलाता हूं, आप भाजपा को, बीजेपी को अपना आशीर्वाद दीजिए। बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित होगी और अपराधी जेल में होंगे, और ये मोदी की गारंटी है। क्यों? टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है। रंगबाजी और कटमनी ये टीएमसी की कमाई का जरिया है। ये लोग जानते हैं, जिस दिन बंगाल के लोग खुलकर सामने आ गए, टीएमसी की विदाई पक्की है। और मैं ये दृश्य देख करके कह सकता हूं, अब टीएमसी को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। और अब तो यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है, एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे? साथियों, धमकाने डराने की इस राजनीति को टीएमसी ने इसे अपना हथियार बना लिया। वोटरों को धमकी, सरकार की नीतियों के आलोचकों को धमकी, मीडिया को धमकी, विपक्ष को धमकी। ये बंगाल में खौफ का कैसा माहौल बनाकर रखना चाहते हैं, ये पूरे देश को जानना चाहिए। ये लोग कहते हैं, तृणमूल को जिसका वोट नहीं, टीएमसी को जिसका वोट नहीं,
तो वो बंगाली नहीं, तृणमूल को वोट नहीं तो सरकार योजना का उसे लाभ नहीं, तृणमूल को वोट नहीं तो घरों में बिजली पानी नहीं, टीएमसी सिंडिकेट के जरिए नहीं जाओगे तो कोई सप्लाई नहीं। लेकिन साथियों, मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी को वो गुंडों, ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठिए को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, कानून का राज आएगा। ऐसे लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, एक ही जगह होगी, जेल, जेल, जेल। साथियों, बंगाल की निर्मम सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहां का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन हैं। आदिवासी समाज के साथ कैसा अन्याय होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब तो टीएमसी सरकार इन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है, उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इन्होंने
भारत के संविधान का अपमान किया है, इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। साथियों, टीएमसी सरकार ने बंगाल को पूरी तरह से अराजकता के हवाले कर दिया है। हमले करते रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है, जब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, मतदाता सूची की शुद्धि की कोशिश करता है, तब टीएमसी उसके खिलाफ हमला करने लगती है। जो संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा ही व्यवहार देश की सेना को लेकर दिखाई देता है। जब 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई की, तब टीएमसी ने देश की वायुसेना से कार्रवाई का सबूत मांगा। साथियों, यहां राज्य सरकार पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच करने नहीं देती। जब राष्ट्रीय एजेंसियां टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों की जांच करना चाहती हैं, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश होती है। अब जरा सोचिए, न्याय के लिए लोग आखिर कहां जाएंगे? साथियों, तृणमूल वाले यही अराजकता दिल्ली तक फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने संसद में भी देखा है, सदन के भीतर कैसे कागज फाड़े जाते हैं, कैसे बहस को रोका जाता है, कैसे सदन की कार्यवाही को बाधित किया जाता है। देश टीएमसी की शर्मनाक हरकतें देखकर हैरान होता है। साथियों, बंगाल के प्रबुद्ध लोग अब इस अराजकतावादी सरकार के खिलाफ संकल्प ले चुके हैं। इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इसी धरती के लोग करने वाले हैं। साथियों, आज यहां जो जनसैलाब उमड़ा है, ये पश्चिम बंगाल की जागती हुई चेतना है। ये उस बदलाव की आहट है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के द्वीपों तक, उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर कोलकाता की गलियों तक, आज हर जगह पर एक ही चर्चा है, बदलाव चाहिए। और ये बदलाव अब होकर रहेगा। साथियों, बंगाल की आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का नौजवान कभी हार मानने वाला नहीं है। बंगाल की बेटियां कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का किसान कभी हार मानने वाला नहीं है। जब जब इस भूमि के सामने चुनौतियां आई है, तब तब यहां की जनता ने साहस के साथ उनका सामना किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी हमें संदेश दिया है। उन्होंने कहा था, विपदे मोरे रक्षा करो, ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी बॉय। आज भी वही समय है। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बदलाव संभव नहीं है, लेकिन याद कर रहिए और याद जरूर रखें, जब जनता ठान लेती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और बंगाल की जनता ने जब भी ठाना है, इतिहास बदल कर दिखाया है। आज मुझे इस ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में
वही आत्मविश्वास मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। याद रखिए, इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। इस बार चुनाव कटमनी से छुटकारे का है। इस बार चुनाव डर से मुक्ति का है। मैं आने वाले परिवर्तन के लिए मेरे बंगाल के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पलटानो दरकार, बीजेपी सरकार, पलटानो दरकार, बीजेपी सरकार, पलटानो दरकार, बीजेपी सरकार, पलटानो दरकार। बीजेपी सरकार। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জয় হোক, জনগণের জয় হোক। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।